Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic business news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां रोज की तरह हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी लगाएं। प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम धीरेन्द्र। धन्यवाद आपका सोनू और राजेश। और अब शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेख। Country building new capabilities through Atmanirbharta. Demand rising for made in India products, says Prime Minister Narendra Modi. Foreign investors pump in over 60,000 crore rupees so far in December, and Ministry of Road Transport extends validity of motor vehicle documents till March 31. देश आत्मनिर्भरता के द्वारा नई क्षमताएं विकसित कर रहा है। मेड इन इंडिया उत्पादों की मांग बढ़ रही है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में अब तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का किया निवेश। और सड़क यातायात मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेजों की मान्यता 31 मार्च तक बढ़ा दी। Prime Minister Narendra Modi has said that India is building new capabilities through Atmanirbharta or self-reliance. In his Mann Ki Baat program on All India Radio, Mr. Modi said the common man of the country has felt the transformation and there is extraordinary hope. He said on account of Corona, the world has faced numerous hurdles in terms of supply chains, but in India we have learnt a new lesson with every crisis and built capabilities. Speaking about the message of Abhinav Banerjee of Delhi, who wrote his experience that customers are demanding India-made products and shopkeepers are selling made-in-India products, Mr. Modi said it is a big transformation in the mindset. He said a major change has come up in the minds of the countrymen within a year. He said it is not easy to gauge this change, and even economists would not be able to assess with their parameters. The Prime Minister said we have to cherish this sentiment, preserve it, and keep nurturing it as well. He urged countrymen to prepare a list of whatever items they use throughout the day, analyze it, and figure out how we can make these products in India. Mr. Modi underlined the need to patronize products made with the hard work and sweat of the people of India. The Prime Minister said people make New Year resolutions every year, and this time one has to certainly make a resolution for the sake of the country. Mr. Modi said it is the opportune moment to work with the ethos of zero defect, zero effect. He urged manufacturers and industry leaders that it is time to ensure that the products meet global standards. He called upon the entrepreneurs and startups to also come forward. Dhirendra, it's a good initiative and a good push that the Prime Minister has given on Atmanirbharta.
Yes, but it requires far too many things to be put together. Atmanirbhar, at the cost of Atmanirbharta, we should not become less competitive. And it requires a big environmental rejig, labor laws, ease of doing business, and variety of other things. And maybe the environment is very conducive right now. And we have a lot of things in the pipeline to be very happy about. Correct. और अब हमारे साथ हमारे आज के पहले कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से आर.एस. भैया जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। नमस्कार। आपसे रिक्वेस्ट है अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम धीमी कर दीजिए, उसकी एको आ रही है। मैम, माय क्वेश्चन टू धीरेन्द्र जी जी that if a fund manager is not able to achieve the performance better than the benchmark, then the fund manager should not get any salary and AMC should not charge any load from the investors. I want this feedback from Mr. Dhirendra to go to all asset management companies. जी धीरेन्द्र जी, इनका सुझाव, इनकी जो टिप्पणी है उस पर आप क्या कहेंगे? अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है और अभी तक अकाउंटेबिलिटी इस तरह से है कि जब लगातार फंड मैनेजर का प्रदर्शन अगर अच्छा नहीं होता है तो लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं और आपके पास ये चारा तो है ही, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि मैं जो सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर है वहां पे इस चीज की कई बार चर्चा होती है कि फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को कैसे उनके आमदनी से या एक्सपेंस से या इनकम से लिंक किया जाए। और एक ओपन एंड फंड में इसको लागू करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्या आप कहेंगे कि इसको हर 3 महीने पे देखा जाए, हर 1 साल पे देखा जाए? क्योंकि मुझे लगता है कि फंड मैनेजर जो आज कदम उठाता है उसका 2-3 साल में उसका असर होता है। क्या आप 2-3 साल इंतजार करेंगे? तो किस अवधि में करें, किसने वो पैसा लगाया और कब पैसा निकल गया? क्योंकि ओपन एंड फंड में रोज पैसा आ रहा है, रोज पैसा जा रहा है, तो ये उसको निवेशकों का फायदा उठा पाए या आपका पैसा लगा हुआ जो है उसका एक्सपेंस कैसे बदलता है? तो ये एक चैलेंज है और इस स्पिरिट से जरूर कोई असहमत नहीं होगा कि अगर कोई प्रदर्शन अच्छा करे तो उसकी आमदनी ज्यादा हो और प्रदर्शन कमजोर हो तो उसकी आमदनी कम हो। कुछ हद तक ये अभी भी होता है, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन कमजोर होता है तो आप जानते होंगे कि जो मैनेजमेंट फी है वो एसेट वैल्यू का एक सर्टेन परसेंटेज होता है। अगर प्रदर्शन कमजोर है, फंड नहीं बढ़ा, तो आमदनी कम होती है। अगर किसी का कोई एक फंड के पास 100 करोड़ रुपया हो, 2 फंड के पास, एक में पैसा किसी का 1.5 गुना हो जाता है, एक में नहीं होता है, तो 1.5 गुना वाले की आमदनी 1.5 गुना हो जाती है। जी क्या तो दैट्स इट। Okay, Sachin from Mumbai is with us. Sachin, we welcome you. हेलो सर। Yeah, Sachin, सवाल पूछें अपना। हाँ सर, मेरा सवाल है HDFC हाउसिंग फाइनेंस फंड के रिलेटेड। जी। उनका फंड हाउस से एक नोटिस आया है सर। हाँ, जो हाउसिंग फाइनेंस फंड सीरीज है ना। आप अपना सवाल पूछते रहें सचिन, आप सवाल पूरा कीजिए। ओपन एंडेड से क्लोज एंडेड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने 1 महीने का विंडो दिया है विड्रॉल का, लेकिन अभी फिलहाल जो रिटर्न है वो माइनस में है। जी हाँ। और वो उन्होंने बताया कि एक बार वो क्लोज एंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 साल के लिए हम लोग विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो भी आप सजेशन, उससे विड्रॉ करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? HDFC की सोच ये है कि आने वाले 1 साल में उसका प्रदर्शन अच्छा होगा, पर इस फंड को मैंने बहुत बारीकी से नहीं देखा है और मुझे लगता है अगले सप्ताह तक आपको वेट करना पड़ेगा। और ये जो आप नाम बता रहे हैं ये उस फंड का करेक्ट नाम नहीं है। HDFC हाउसिंग फाइनेंस फंड मुझे कोई ध्यान नहीं आ रहा है। अगली बार आप इस फंड का या संभव हो तो अभी इस प्रोग्राम के चलते हुए इस फंड का सही नाम हमें जरूर बताएं। अगले कॉलर है दिल्ली से अरुण हमारे साथ। अरुण जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। आपसे रिक्वेस्ट है अपने रेडियो प्लीज बंद कर दीजिए, उसकी वॉल्यूम बिल्कुल हल्की कर दें। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा एक ही सवाल है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने हमसे ओपिनियन मांगी है जी वोटिंग के थ्रू कि हमको क्या करना चाहिए। शुड वी गो इन फॉर रिडेम्पशन
early, or should we wait for them to consolidate this thing? I want to know your opinion on it. My opinion is, I put it on my website. I have written a very elaborate column on this, but I'll tell you in a summary. Yes or no? I think it has to be yes. I'll tell you the reason why yes. Because I want orderly, closure of the fund. If tomorrow the fund is open, and so which means every investor should ideally, I'm also an investor in a couple of these funds. Everybody, should turn up to file their redemption request. If the Franklin Templeton funds have to really sell all the securities that they have on the day of, opening up for redemption, I think, there's going to be a big hit on the NAV. The NAV that we see right now is realizable only if, the fund manager provided an opportunity, because most of the NAV of fixed income fund is not realizable value, net realizable value. As a going concern, because there is a lack of liquidity of the securities, underlying securities. Fixed income funds, you don't have an active market. So that is why I think, logically, it should be no, but, practically it should be yes. Otherwise, it is going to really hurt our interest. All the serious investors of Franklin Templeton Fund, they will benefit by, saying yes. अगले कॉलर है पुणे से आशीष आपका स्वागत है, सवाल पूछें. Hi, good evening everyone from the Market Mantra. My question, I have two questions for the mutual fund. First one, I'm having frankly one of the mutual fund which is going to close, which is already being closed. Mm-hmm. So they are asking for the voting to whether to be closed or not. So what should we do? And my another question is, I am having a mutual fund from L&T Infrastructure Fund from past 1.5 years, and it is still in negative. So what should I do about it? Yeah, I just answered in somewhat great detail that why one should be, for the Franklin Fund, one should be voting as yes, methodical winding up of the fund. And I explained the reason. So that explains it. The other is that, L&T Infrastructure Fund, most investors can do without an infrastructure fund. अगले कॉलर है मुंबई से ठक्कर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए. हेलो. जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए. अच्छा मैडम, मुझे ये पूछना था कि असंगठित कामगार के लिए पेंशन योजना चालू की थी 95 का, वो बढ़ने वाला उसका मालूम है आपको? नहीं, मुझे आपका सवाल ही मैं नहीं समझ पाया. रिपीट करिए एक बार ही आप अपना सवाल. I think we've lost touch with him. Maybe go on to the next story, or we have another caller. Samar Chaudhary is with us. Samar, we welcome you to Market Mantra. Good evening, sir. Good evening. Please ask your question. Actually, what happened, I wanted to know, actually, I have already invested in SBI mutual fund. Which fund? In SBI Life. Likewise. So, how is समर साहब वो पूछ रहे हैं कौन सा आप फंड में है? म्यूचुअल फंड के ढेर सारे फंड हैं, आपने किस में पैसा लगाया? म्यूचुअल फंड में, SBI म्यूचुअल फंड. No, SBI mutual fund is running, nearly 100 funds or maybe more than that. Your investment is in which fund? SBI mutual fund and your SBI Life also. Oh, समर साहब, हम आपको बता नहीं पाए, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे. आपको अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकालिए और आप देखें कि SBI म्यूचुअल फंड उस कंपनी का नाम है, उस ट्रस्ट का नाम है. SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के उस ट्रस्ट का द्वारा मैनेज किया जाने वाला सैकड़ों फंड है. किस खास फंड में आपका पैसा लगा हुआ है, तभी हम कुछ आपकी मदद कर पाएंगे. We would like to request to all our listeners that if you could keep with you all the information ready for asking Dhirendra Kumar, so that he can give you relevant information or relevant reply related to the mutual fund that you're asking for. Varun from Delhi is with us. Varun, we welcome you to Market Mantra. Good evening, sir. Good evening. Please ask your question. सर, मुझे ये पूछना है, जो
फंड हमारा पास है सर, वो अभी उतना अच्छा नहीं कर रहा है कुछ एक फंड, और ये मिसमैच है, तो इसको मैं सारे मल्टीपल कैप फंड और वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मगर इसका जो गेन है सर, वो साल में मेरा ओवरऑल जो है वो 5-6 लाख से ज्यादा गेन हो रहा है। तो इस केस में सर मुझे कैसे इसको री इन्वेस्टमेंट और स्विच करना है फंडों में? आप बताना चाहेंगे कौन से फंड हैं? सर मेरा पास अभी जो है उसमें है डीएसपी का टैक्स सेवर है सर, मेरा पास है मेरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, वो तो अच्छा कर रहा है। और मैंने अभी जो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो कोटक मल्टी कैप फंड में, पराग पारिक मल्टी कैप फंड में, और वैल्यू फंड में इन्वेस्टको का वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मगर मेरा पास जैसे मल्टी एसेट आईसीआईसीआई का फंड है, उसमें तकरीबन 3 लाख रुपया गेन हो रहा है, और मेरा पास बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, उसमें भी 1-1.5 लाख का गेन हो रहा है। तो और ये सब आपका जो गेन है क्या एक साल में हुआ, ये जो आपको बदलाव करना है और आप अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन का नॉर्म आपको पता ही होगा। 1 साल से कम में आप इक्विटी फंड बेचते हैं तो मुनाफे का 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 15% आपको टैक्स लगता है। 1 साल से ज्यादा पुराना अगर आपका फंड हो तो उस पर 10% लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। और वो सारा मुनाफा, वो सारा कैपिटल गेन जो 31 जनवरी 2018 तक था, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, क्योंकि उसके पहले इक्विटी फंड से मिलने वाला कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स एग्जेम्प्ट था। जब से वो लागू हुआ 1 फरवरी 2018 से, तब उस दिन के एनएवी से अभी तक जो आपकी वृद्धि हुई है, केवल उस पर ही टैक्स लगेगा, उसके पहले का गेन टैक्स फ्री है। तो इसी को देख करके बिल्कुल अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करें। टैक्स को ध्यान में, टैक्स जो लगेगा उसकी आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में केवल 5% का अंतर है, और ये केवल मुनाफे पे लगता है। तो जरूर ये बदलाव कीजिए, और चूंकि आप, मुझे लगता है कि आप समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुनाफे पे है, और इसको आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं मेथोडिकली, जरूर कीजिए। अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से गौरव। गौरव जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। नमस्ते धीरेन जी, मेरा कुछ पैसा इसमें एसबीआई मैग्नम ग्लोबल एमएनसी फंड में और कुछ फार्मा और हेल्थ केयर फंड में लगा है, जिसमें करीब 15 और 8% रिटर्न आया हुआ है। हेल्थ केयर में 15 और ग्लोबल एमएनसी में कुछ 8% XIRR आया है। अभी मैं उसको निकाल के एसबीआई के फोकस्ड इक्विटी और डिजिटल फंड में करीब 10% और 90% में मल्टी कैप में फोकस। क्या ये डिसीजन सही है क्या सर? थोड़ा कमेंट करिए। और आगे आपको क्या लगता है, लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी कैप तो अच्छी होना चाहिए, 5 साल 10 साल की जरूरत नहीं है फंड? थैंक यू। मुझे लगता है कि एमएनसी फंड एक कंजर्वेटिव फंड है, और किसी समय में ये बड़ा वैल्यूएबल और परफॉर्मिंग था, और अभी भी मुझे लगता है कि इसमें काफी दम है, क्योंकि एमएनसी का जो यूनिवर्स है और एक एक्टिव मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है। दूसरी फंड कंपनी का प्रदर्शन मुझे पता नहीं है कि आपने कब लगाया था और उसकी वजह से आपका 8% रिटर्न है, लेकिन एक मेथोडिकल इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी एक अच्छा फंड है। फोकस इक्विटी चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यहाँ पे भारी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा जाएगा, और आपका जो फायदा हुआ है हेल्थ केयर फंड में, किसी का भी पैसा हेल्थ केयर फंड या फार्मा फंड में पैसा लगा हो तो 1 जनवरी से अभी तक जिस तरह का मुनाफा देखा गया है उसका ही असर है। लेकिन मत भूलिए कि उसके पहले का 4-5 साल बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, और ये अक्सर देखा जाएगा। अगर आप देखें कि इस साल में फार्मा करीब 66% बढ़ा है, एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब बाजार पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था। और तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर फंड पे आमतौर पे आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपके जो मल्टी कैप फंड है, और ये जो अब नया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्रिएट हो गया जिसमें मल्टी कैप फंड तेजी से रफ्तार से वहां मूव कर रहे हैं, उनमें लगाना चाहिए ताकि आपको ये एक्सपोजर मिले। लेकिन अब क्योंकि जब आप ये देखेंगे तो ये इस तरह के जो सेक्टर फंड है, या तो आप जब किसी भी पीरियड पे आप इनको सॉर्ट कीजिएगा परफॉर्मेंस पे, तो या तो आपको ये ऊपर दिखेंगे या बहुत नीचे दिखेंगे अपने डिजाइन की वजह। Joining us now from Pune is Preetam. We welcome you, Preetam. Hello? Preetam, can you hear us?
think we've lost touch with Preetam. We can go on to our next headline story, Sonu. बिल्कुल। सेकेंड हेडलाइन स्टोरी आज की, भारतीय पूंजी बाजारों में खरीदारी का सिलसिला जारी रखते हुए विदेशी निवेशकों ने अभी तक दिसंबर में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डिपॉजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार 1 दिसंबर और 24 दिसंबर के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इक्विटी बाजार में 56,643 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया और ऋण से जुड़े वित्तीय उपकरणों में 3,451 करोड़ रुपए निवेश किए। आलोच्य अवधि में कुल शुद्ध निवेश 60,094 करोड़ रुपए का रहा। नवंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में 62,951 करोड़ रुपए का निवेश किया था। और अब हमारे साथ हैं हमारे एक रेगुलर लिसनर एसपीएस जैन, ग्रेटर नोएडा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार जी धीरेन जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं अभी कुछ डेट फंड में एसबीआई मीडियम ड्यूरेशन रेगुलर ग्रोथ में पैसा लगाना चाहता हूं मैं, तो इसमें ये मुझे खतरा है कि ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ जो एपिसोड हुआ है, ऐसा खतरा स्टेट बैंक के इस फंड के साथ तो नहीं हो सकता है? होना नहीं चाहिए। और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का भी जो फंड है वो एक खास ऐसे मतलब एक आंधी तूफान के इन्वायरमेंट में हुआ। मार्च के जिस तरह का भगदड़ मचा हुआ था, जिस तरह की अनिश्चितता थी, जिसमें निवेशक अपना पैसा तेजी से निकाल के पैसा निकाल रहा था, जिस वजह से उस मायर में ये फंड फंस गया। मुझे उसकी उम्मीद कम है। लेकिन ये मत भूलिए कि म्यूचुअल फंड रोज यहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं, निकालते हैं। अगर सारे निवेशक एक साथ पैसा निकालने के लिए आ जाए तो ये बदहाली किसी भी फंड की हो सकती है। धीरेन्द्र, अभी जो हमने स्टोरी पढ़ी उसमें जो तथ्य सामने आया है कि एफपीआईज, एफआईआईज रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारतीय बाजार में, ये सिलसिला आपको क्या अब नए वर्ष में भी जारी रहता दिखाई देता है? कितनी स्टेबिलिटी आपको दिखाई देती है बाजार में? स्टेबिलिटी का तो पता नहीं, पर मुझे लगता है ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें कि ये केवल इस चीज का असर है कि अमेरिका में दूसरा स्टिमुलस आया। अगर विदेशी बाजारों में अगर पैसा फ्लो करता रहेगा, लिक्विडिटी रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो पैसा जाएगा। और भारत एक और एटलीस्ट एक मॉडरेट ग्रोथ ओरिएंटेड, मतलब ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने वाला बाजार है। उस वजह से यहाँ पे पैसा आता रहेगा। कितना स्टेबल रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्टेबल नहीं रहेगा। इस तरह का जब पैसा आता है वो तेजी से निकलता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी अपना पैसा निकाल रहे हैं, जो कि लगातार पैसा लगा रहे थे। इसमें इन चीजों में, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी ड्रिवन जो ये बाजार का बढ़ना है, उसमें जब भी लिक्विडिटी कम होगी या उसमें फेरबदल होगी या कुछ समय का उसमें बीच में डिसरप्शन होगा, तो बाजार में उतर पुतर दिखेगा। Okay, Preetam from Pune has rejoined us. Preetam, we welcome you. Please ask your question. नमस्ते सर। नमस्ते, सवाल पूछें। किसानों के लिए कुछ म्यूचुअल फंड का है क्या? थोड़ा मार्गदर्शन करें। किसानों के लिए तो नहीं है, लेकिन एक मुझे याद है कि सुंदरम का एक रूरल फंड था, सुंदरम का रूरल कंजम्पशन फंड। ये इस चीज पे आधारित था कि अगर आप रूरल इकोनॉमी से जिस फंड को फायदा होगा वो ये फंड है। और ये फंड बड़ा रिवॉर्डिंग साबित, मतलब बुरा नहीं साबित, बड़ा रिवॉर्डिंग साबित हुआ है। 2013 में लॉन्च हुआ था और इसमें 14% की सालाना रिटर्न मिला है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम है, सुंदरम का रूरल एंड कंजम्पशन फंड, जो कि लेकिन केवल किसानों के लिए ऐसा कोई फंड नहीं। Dhiren, what would be the ideal portfolio mix? What kind of advice will you give to someone whose portfolio has only 100% debt funds? Oh, then one has to really worry about something else. Quality. It must be, substantially today, because though we don't find this kind of difficulty in the debt market right now, we find great stability. But also instability comes in a very brief period of time, and it comes when you least expect it. So, and that is something which can't be ruled out, simply because our economy, market performance, equity market performance is one part. Fixed income is a different story altogether. It is rooted in the corporate, cash flows of the company. And I feel that there are a lot of companies which will be facing great difficulty in coming times. And given that banks have faced a huge NPA crisis,
they are unlikely to be to extend a helping hand. So mutual fund exposure to fixed income, those bonds, is quite meaningful. And if some of those companies falter, funds will actually suffer. धीरेन्द्र, एक और चीज है, आपको क्या लगता है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वो नेट सेलिंग कर रहे हैं, तो अभी आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करना भी एक मैच्योर बिहेवियर है, शायद एक अच्छा फैसला है, रैशनल फैसला है? नहीं, बड़ा मुश्किल है ये कहना कि अभी प्रॉफिट बुकिंग करना रैशनल है या नहीं है, क्योंकि बाजार कुछ समय से महंगा लग रहा है और शायद और महंगा हो जाए, और बाजार और चलता जा रहा है। बाजार में जिस तरह की गिरावट देखी गई थी, जिस तरह से बाजार में उस गिरावट का टर्न अराउंड हुआ जिस रफ्तार से, तो इससे आप बाजार के बड़े मूव से आप बचे रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। मुझे लगता है आम निवेशक को केवल अपना एसेट एलोकेशन निर्धारित करके उस तरह से रीबैलेंसिंग करना चाहिए। Let's take our last headline story and then we'll come back to you, Dhiren. The Ministry of Road Transport and Highways has extended the validity of vehicular documents like driving license, registration certificates and permits, etc. till March 31st, 2021. The advisory said, taking into consideration the need to prevent the spread of COVID-19. It covers all documents whose validity has expired since 1st of February 2020 or would expire by the 31st of March 2021. Dhiren, what advice will you give to the investors now that 2020 is almost over and we are getting into 2021? Should they continue to be in SIP or should they change? Yes, 2020 or 2021, I think, this is a great lesson. 2020 is a great lesson in terms of if you are trying to time the market, it will not work. If you're trusting the fixed income fund, it will not work. So basically, you have to configure your things based on the learnings from 2020, and that is, have a plan if you don't have one, and stick to that plan. Don't get distracted when the market moves wildly. Maybe and if you have if you have a plan, the plan should be dividing the money which is for short term, medium term, and long term, and having an asset allocation plan for your long term investment. And that long-term investment allocation, for that you should have an asset allocation. And these kind of opportunities, the madness of the market will create opportunity for you, and individual investors can benefit far more than many of the institutional investors, because they might go wrong. But a plan based on your context is unlikely to. धीरेन्द्र, अगर हम इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स की बात करें, तो एसेट एलोकेशन, अगर आपका सपोज जो भी आप पैसा लगा रहे हैं बाजारों में, उसका क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए? निर्भर करता है ये कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो केवल 1/3 पैसा या केवल 1/4 पैसा आपका इक्विटी में लगाओ, क्योंकि जो बाजार का जो उतार चढ़ाव है, इससे बड़ी आपको बहुत विचलित होंगे आप। तो अगर आपने देखा है 4-5 साल से आप निवेश कर रहे हैं, इस उतार चढ़ाव से आप थोड़े वाकिफ हो गए हैं, तो जरूर 2/3 पैसा लगाना चाहिए। और इक्विटी से जुड़ा, जब भी आपका पैसा इक्विटी में डोमिनेंटली जाए, तो कभी भी एक बड़ी रकम एक साथ ना लगाएं। And what about those who are particularly looking at retirement? What advice would you give to them? And we just have 15 seconds. Retirement, everybody has to plan more carefully, and maybe we should be talking, because it's a larger topic. Yes. We talked about, because interest rates are coming down, and it has to be dealt with in a completely different way. समय समाप्त हो रहा है कार्यक्रम का, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। And before we close the headlines once again, country building new capabilities through Atmanirbharta, demand rising for made in India products, says Prime Minister Narendra Modi. Foreign investors pump in over 60,000 crore rupees so far in December, and Ministry of Road Transport extends validity of motor vehicle documents till March 31. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Market Mantra.